we were dealing with long run average cost curve. Long run average cost curve, LAC. In the long run, we plan the production and accordingly we choose the plant. क्या बोला मैंने? In the long run, we plan the production and accordingly we choose the plant which will help you to produce that output at least possible cost. कोई भी output आप choose करो in the long run, you can produce that output at least possible cost by installing the given plant. So first step is to deciding the output and then deciding the plant which will help you to produce that output at lowest cost. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कॉस्ट सबसे कम होगी सब आउटपुट में, नो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उस आउटपुट की वो लोएस्ट कॉस्ट होगी. लाइक suppose I want to produce this much output. So there can be different plants like this. This can be one plant which will help you to produce. There can be another plant, right? Or even there can be another plant. Are you getting my point? So I can produce this. Suppose this is plant SSE 10, SSE 11, SSE 12. Suppose I can produce this output, OQ output, suppose, using the 3 plants. But I can see if I produce it with SSE 12 plant, the plant having the cost curve SSE 12, it will help me to produce the OQ output at a lowest possible cost. So in 3 cost में से सबसे lowest SSE 2 पे है, so I will choose SSE 12. Try to understand. Does not mean कि ये lowest cost है सब outputs में, not necessarily. ठीक है? So पहले ये समझ में आना चाहिए. First plan the output, demand forecast करो, accordingly output decide किया जाएगा, and वो output आपको lowest cost पे बनाना है. इसलिए कौन सा plan चाहिए वो decide करो. So like example, हम SSE 12 choose करेंगे. The lowest point of SSE 12 is like this. So I will say SSE 12 पे जो production हो रहा है OQ output, at that output the SSE 12 is underutilized. जब हम उसको output increase करेंगे तो मैंने कल बोला कि whether producer will move on the same curve or will shift the curve. In the long run he will shift the curve. He will not move on the same curve because there can be another curve जहां पे he can produce the same output, ये optimum output उस curve का, even at a lower cost. So he has to achieve the 2 objectives. One, एक objective क्या है कि जो भी output है वो lowest cost पे बने, जो भी output है वो lowest cost पे बने. मतलब select any output, कोई भी output उठाओ, try to produce it at a lowest possible cost. उसको हम lowest cost पे बनाने का ट्राई करेंगे. एंड दूसरा है जो प्लांट हमने उसके लिए सिलेक्ट किया है, that plant should be optimally utilized. ना ही अंडर यूटिलाइज होना चाहिए, ना ही ओवर यूटिलाइज होना चाहिए. 2 टारगेट्स है. पहले तो जो भी आउटपुट हम डिसाइड करेंगे वो हम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे बनाएंगे. मतलब उसके लिए ऐसा प्लांट इंस्टॉल करेंगे जो हमें वो आउटपुट लोएस्ट कॉस्ट पे बना के देगा. दिस इज फर्स्ट. एंड दूसरा, जो प्लांट हमने सिलेक्ट किया है वो ऑप्टिमल यूटिलाइज हो, वो फुल यूटिलाइज हो. सो फिर कल मैंने बोला था आपको, इफ every output has its own plant which will help you to produce it at the lowest possible cost. Every output, हर आउटपुट की अपनी अपनी एक प्लांट है. If we assume every output will have its own plant, we will get
millions of the short run average cost curves of those plants. And if I draw a curve which will be tangent to those curves, I will get a short run average cost curve. Long run average cost curve LAC. Every point on this curve is one plant. Every point on this curve is one plant. What do you mean by this? It represents every point on LAC represents one plant curve, one SSC. It means वो आउटपुट उस लेवल के आउटपुट की वो लोएस्ट कॉस्ट है, इस लेवल के आउटपुट की ये लोएस्ट कॉस्ट है, इस आउटपुट की ये लोएस्ट कॉस्ट है. सो व्हाट LAC shows? LAC shows lowest possible cost of each output. LAC shows lowest possible cost of each output. ऐसे पॉइंट्स को जब हम ड्रॉ करेंगे, कनेक्ट करेंगे, हमें LAC मिलेगी. Up to this output, up to this OQ output, suppose up to this OQ output, your two objectives. पहले तो वो आउटपुट लोएस्ट कॉस्ट पे बने, एंड वो लोएस्ट कॉस्ट पे बनने के लिए जो प्लांट हमने इंस्टॉल किया है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो. अप टू OQ आउटपुट, कल मैंने समझाया था कि हर आउटपुट के लिए एक अलग प्लांट रहेगा, वो अचीव हो जाएगा. आपको कोई भी लेना है, सपोज आपको ये आउटपुट चाहिए, लेकिन आप ये प्लान डाल सकते हो जिसकी लोएस्ट कॉस्ट ये रहेगी, जिसकी लोएस्ट कॉस्ट ये रहेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर एवरी आउटपुट इट्स इट्स ओन लोएस्ट कॉस्ट, बट इफ यू कैन सी दिस प्लांट इज बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड. सपोज ये वाला देखते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है. सपोज दिस इज SSC3, अगेन अंडर यूटिलाइज्ड. सपोज ये वाला देखते हैं, ठीक है. सो अप टू OQ आउटपुट, objective 1 achieved. Objective 1, lowest possible cost of that output. Cost of that output. This is my objective 1. And objective 2. Right? Optimum utilization of that plant. Optimum utilization of that plant. Up to OQ आउटपुट, हर आउटपुट के लिए एक प्लांट कर्व है. सो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, यस, बट यहाँ पे plants are underutilized. Why? Because when LAC is a downward sloping, it is a tangent to downward sloping portion of SSC. When खुद LAC downward sloping होती है, it is tangent to downward sloping portion of SAC. Means each plant up to OQ output, each plant at OQ output will give you least cost of each output. However, those plants are underutilized. Beyond OQ output, suppose this is, या ये लेता हूं, I will try my best. This is the cost curve, so this is the minimum point. Suppose हमें ये आउटपुट करना है, suppose this is SSC, suppose 7, जो भी है, हमें ये आउटपुट करना है. This is the lowest output. This is SSC, suppose 10. क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम दे दो. So now you can see
SSC 6, 7 and SSC 10 will help you to produce given output, ये वाले outputs at lowest possible cost. Are you getting my point? So they will help you to achieve that. Objective 1 clear हो जाएगा. However, you can see when LSC is a upward sloping, LSC खुद upward sloping है, it is tangent to upward sloping portion of SSCs. Upward sloping portion of SSCs means वहां के SSCs are overutilized. So objective 2 is not achieved. यहाँ पे underutilized है. मतलब अप टू OQ आउटपुट कोई भी आउटपुट हम कम कॉस्ट में बना सकते हैं. उसके लिए जो प्लांट लगाएंगे वो इंस्टॉल करेंगे, बट दोस प्लांट्स आर अंडरयूटिलाइज्ड. बियॉन्ड OQ आउटपुट कोई भी आउटपुट ले लो, हम लोएस्ट कॉस्ट पे बना सकते हैं, बट उसके लिए जो प्लांट इंस्टॉल करेंगे दे विल बी ओवर यूटिलाइज्ड. बट देयर इज आउटपुट OQ आउटपुट जहां पे OQ आउटपुट के लिए जो प्लांट इंस्टॉल करेंगे like this. Suppose this is SSC 5, कुछ भी ले लो SSC 5, ठीक है. So OQ output is an output which can also be produced by installing SSC 5 at least possible cost. Yes, and to your surprise, or you can see, it is optimally utilized because at that point जो हम OQ output जहां पे SSC 5 पे बना रहे, that is the lowest point of the short term average cost curve. So SSC 5 helps you to achieve both the objectives. जो आउटपुट है वो लोएस्ट कॉस्ट पे, एंड जो प्लांट उस आउटपुट के लिए लगाया है वो ऑप्टिमल यूटिलाइज हो रहा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अप टू OQ आउटपुट जो भी प्लांट से अंडर यूटिलाइज, बियॉन्ड OQ आउटपुट जो भी प्लांट्स लगाए ओवर यूटिलाइज है, एट OQ आउटपुट जो प्लांट हमने इंस्टॉल किया है वो ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड है. देयर इज ओनली सिंगल प्लांट विच विल बी इन शॉर्ट रन ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड है, एंड लॉन्ग रन में भी वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है. लॉन्ग रन में वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है एंड शॉर्ट रन में वो ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड है. दिस इज आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग रन. वो सबसे लोएस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, एंड प्रोडक्शन शॉर्ट रन में होगा तो वो ऑप्टिमल यूटिलाइज होना चाहिए शॉर्ट रन में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दोनों मिक्स होना चाहिए. सो SSC 5 in this my example is right. The optimum SSC 5 or plant 5 is a optimum plant giving you the output OQ output at lowest possible cost, and that output सारे आउटपुट में से सबसे उसकी कम कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम है. ठीक है. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग लेस देन OQ आउटपुट, ट्राई टू बी ऑन OQ आउटपुट. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन OQ आउटपुट, ट्राई टू बी ऑन OQ आउटपुट. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि OQ आउटपुट प्रोड्यूस किया मतलब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि OQ आउटपुट भी प्रोड्यूस करोगे तो ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. मैंने कल एंड करते करते एक चीज बोली थी, लोएस्ट कॉस्ट डज नॉट मीन हाईएस्ट प्रॉफिट. लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट डज नॉट मीन हाईएस्ट प्रॉफिट. नो नो, नॉट एट ऑल. समझ में आ रहा है? सो OQ आउटपुट, ये इन एग्जांपल जो OQ आउटपुट है वो प्रोड्यूस करोगे, इसका मतलब वो हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता. ठीक है. देन अब ध्यान देना, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. When firm is said to be optimum in the short run, when firm is said to be optimum in short run or long run and long run.
This is my SSC. ठीक है, it is U shaped. ये थोड़ी फ्लैटर्ड यू शेप होती है, फ्लैटन यू शेप, ये उसको बोट शेप बोला जाता है, बोट शेप, बोट जैसे बोट. दिस इज प्रॉपर यू शेप, दिस इज फ्लैटेंड यू शेप. ठीक है, दिस इज लोएस्ट पॉइंट, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, एंड एट दिस लोएस्ट पॉइंट यू नो at lowest point of SSC your MC passes through. MC cuts, MC cuts AVC and AC at its minimum. So this is short run MC, this is short run average cost SSC. SSCs are called as plant curve because हम उस plant पे काम कर रहे हैं. Then similarly, this is LAC long run average cost and उसकी long run marginal cost. Long run average cost and long run marginal cost. ठीक है, clear है? So this output, this is OM output and this is suppose OQ output. This is price, suppose this is, ठीक है, एक्सिस अलग अलग है, मतलब डोंट से कि यहाँ पे भी ओपी रहेगी तो यहाँ पे भी ओपी रहेगी, नॉट नेसेसरीली. ठीक है, अप टू OM output, the given plant is underutilized. ठीक है, रीजन increasing returns to variable factor. शॉर्ट रन है ना, वेरिएबल फैक्टर. देन beyond OM output, given plant is overutilized. डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइज, अपवर्ड स्लोपिंग है तो हम उसको ओवर यूटिलाइज बोलते हैं. गिवन प्लांट इज ओवर यूटिलाइज्ड. इसका रीजन है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर. Decreasing returns to variable factor, and therefore OM output is optimum output in the short run. ठीक है, and the cost is OP, उसकी cost है produced at short run, produced at average cost of rupees OP.
ठीक है, रुपीज ओपी यहाँ पे लॉन्ग रन में। सो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन में ऑप्टिमम आउटपुट कौन सा होता है? आउटपुट वियर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल कट द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। लिख लेना यहाँ पे, वियर short run marginal cost curve is equal to short run average cost curve. Optimum output is the output where short run, because short run की बात कर रहा हूँ, short run marginal cost will be equal to short run average cost. Short run marginal cost always cuts the average cost that is below lowest point. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, therefore up to OQ output, ठीक है, up to OQ output गिवन प्लांट्स, यहाँ पे मैंने प्लांट बोला था, मैं यहाँ पे प्लांट्स यूज कर रहा हूं, ऑल दोज प्लांट्स, ठीक है, आर अंडरयूटिलाइज्ड। उसका रीजन है, लॉन्ग रन के लिए लॉ होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। उसका रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन के लिए स्केल, as we increase the plant size of the plant, the output increases more than increase in the scale. You get economies more than the diseconomies, or लिखो that is economies of scale are more than diseconomies of the scale. Economies of the scale are more than diseconomies of the scale. ठीक है, economies of the scale are more than diseconomies of the scale. आगे यहाँ पे हो गया economies of the scale is more than diseconomies of the scale. And therefore we get increasing returns to scale. And जैसे जैसे increasing returns मिलेंगे, efficiency increase होगी, cost per unit decrease होगी, efficiency increase होगी, cost per unit decrease होगी। जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज करोगे, आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग एट ए हायर स्केल, योर फिक्स्ड कॉस्ट गेट अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, बेनिफिट मिलेंगे आपको। देयरफॉर बियॉन्ड ओक्यू आउटपुट, जो भी प्लांट्स हैं, गिवन प्लांट्स आर ओवर यूटिलाइज्ड, गिवन प्लांट्स आर ओवर यूटिलाइज्ड, गिवन प्लांट्स आर, ओक्यू के आगे कोई भी प्लांट उठाओ ओवर यूटिलाइज्ड है। उसका रीजन है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। You can always match cost with the production function, because cost function is a derived function from the production function. यहाँ पे diseconomies exceeds the economies, diseconomies of the scale are more than economies of the scale.
diseconomies of the scale are more than economies of the scale. Then इसलिए एक लेवल के बाद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, राइट? डिसीजन डिलेज हो जाएंगे, राइट? मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं रहेगा एंड दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द इफिशिएंसी. जब इफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी. ठीक है? देन OQ output. In the long run, OQ output is the optimum output. In long run. ठीक है? Produced at average cost of rupees OP. चाहे तो इसको OP1 बोलो, इसको OP2 बोलो, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा. They may not be same. शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कभी भी ज्यादा रहेगी देन द लॉन्ग रन. ठीक है? प्रोड्यूस्ड एट रुपीज OP2. लॉन्ग रन में ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन क्या है? लॉन्ग रन में ऑप्टिमम आउटपुट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है? दिस इज SSC, दिस इज SMC. हर SSC की उसकी एक SMC रहेगी, हर LAC की अपनी एक LMC रहेगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. Where LSC is equal to LMC, also is equal to SSC, also is equal to, right, SMC. That output. यहाँ पे LSC is tangent to the lowest point of SSC. LSC is a tangent to the lowest point of the SSC, and lowest point of SSC पे उसकी SMC equal होगी. And you can find LSC का lowest point is tangent to lowest point of SSC. मतलब वहां पे SMC is equal to LMC. Everything is equal. Everything is equal. Clear है? So this is your optimum output in the long run, where long run average cost is equal to short run average cost is equal to short run marginal cost is equal to long run marginal cost. मतलब generally आप यहां कहां पे भी देखो, यहां कहां पे भी देखो, अगर आप SSC 1 पे काम कर रहे हो, SSC 3 पे काम कर रहे हो, तो योर एवरेज कॉस्ट इज मोर देन लॉन्ग रन कॉस्ट. उस पॉइंट की एवरेज कॉस्ट, आपका लॉन्ग रन का ऑप्टिमम कहां पे है? यहां पे ना. आपकी लॉन्ग रन की लोएस्ट कॉस्ट ये है, सपोज OP1. आप कहां पे? यहां पे OP2 पे काम कर रहे हो, यहां कहां पे? OP3 पे. यहां पे देखो, सपोज मैं यहां पे एक एक्सिस डालता हूं समझने के लिए. ये वाला देखो, समथिंग OP2, यहां पे समथिंग सपोज OP4. देखते हैं यहां पे OP4, OP5. यू कैन सी एक्सेप्ट OQ आउटपुट, कोई भी आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हो लोएस्ट कॉस्ट, एंड दोस लोएस्ट कॉस्ट आर मोर देन द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ OQ आउटपुट. पूरे आउटपुट में OQ आउटपुट की कॉस्ट सबसे कम है, एवरेज कॉस्ट सबसे कम है. क्लियर है? आगे ऑब्वियसली up to OQ output, if you increase the output, your average cost will decrease because you are getting the benefit of returns to scale, increasing returns to scale. Beyond OQ output, if you increase the output, your average cost will increase. You should actually decrease the output because वहां पे diseconomies of the scale are more, decreasing returns to scale है. And at this point,
द लोएस्ट पॉइंट ऑफ LAC, उसका रीजन लिखो, उसका रीजन है, द रीजन इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. That is, economies are equal to diseconomies. Why LAC is a U-shaped? Reason समझा रहा हूं. Why LAC is U-shaped? Initially, as you increase the scale, means you are shifting from one plant to another plant to another plant to another plant because you want to increase the output. आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप प्लांट पे मूव हो या शिफ्ट हो जाओ. आपने शिफ्ट होना पसंद किया. So as you increase the capacity, initially economies will be more than diseconomies of the scale. Your efficiency will increase and your average cost per unit will decrease. ठीक है, इसलिए पहले डाउनवर्ड स्लोप. In the latter stages, as you still keep on increasing the scale to increase your output, you will changing the plant, you are shifting the curve. Latter stages में diseconomies will become equal to economies and the returns to scale will be constant, and therefore your average cost will become lowest and constant for some time. And later on, if you still increase the scale, your diseconomies will be more than economies. You will enter into decreasing returns to scale. जितने से इनपुट इंक्रीज कर रहे हो, जितने से स्केल चेंज कर रहे हो, उससे कम से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, मतलब योर इफिशिएंसी इज डिक्रीजिंग. इनिशियली इफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग, इसलिए एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है. latter stages में efficiency is constant, marginal product is a constant, efficiency is a constant, therefore average cost will remain constant and lowest. And in the third stage, right, decreasing returns to scale, matlab efficiency will decrease, MP will decrease, marginal product in long run will decrease, right? Your efficiency decrease हो रही है, your average cost will keep on increasing. So law of returns to scale is a reason behind U shaped. देखो, of LAC, SSC शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड है, उसके दो रीजन है. एक, ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इनिशियल स्टेज में जब तक वो डिक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, एंड जब वो इंक्रीज होती है, इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर. नेगेटिव रिटर्न्स में कोई नहीं जाएगा. दूसरा रीजन है AFC एंड AVC का नेचर. इनिशियली बोथ AFC एंड AVC डिक्रीजेस, therefore both pulls down SSC, दोनों नीचे खींचते हैं. Latter stages में AFC continues to decrease at a higher rate than increase in the AVC. जिस रेट से एवरेज फिक्स कॉस्ट उसको नीचे खींच रही है, that is more than जिस रेट से AVC उसको ऊपर खींच रही है. And AC will continue to decrease but at a now diminishing rate. In the latter stages, as you increase the variable factor, लेबर जैसे से इंक्रीज करोगे, AFC still continues to decrease, AVC increases more than decrease in AFC. AVC pull up average cost more than it pull down, right? AFC pulls down it, and therefore AC curve continues to increase thereafter, becomes minimum, continues to increase. ये दो reasons है short run average cost के U shape के. And what is the reason for long run average cost U shape both shape के? First, increasing returns to scale की वजह से efficiency is increasing, average cost is decreasing. In the latter stages, you enter into constant returns to scale, homogeneous linear production function. Constant returns to scale, homogeneous linear production function. ठीक है, उस केस में right, efficiency is a constant, MP is a constant, and therefore average cost remains constant and lowest. And thereafter you enter into decreasing returns to scale, means your MP is decreasing, your efficiency is decreasing, and therefore your average cost will increase. Efficiency and cost
efficiency and average cost are opposite. ठीक है. और initial stage में as you increase the scale you will find economies of the scale are more than diseconomies. दोनों increase होते हैं but economies are more than the diseconomies. In the second stage diseconomies neutralizes the impact of the economies, right, economies of the scale, and therefore my average cost remains lowest and constant. And in the third stage my diseconomies will be more than economies, right, my average cost will increase. These are the reasons. ठीक है. So यहाँ पे मेरा पूरा डिस्कशन खत्म हुआ है. ओपन द मॉड्यूल. नेक्स्ट. ठीक है, देखते हैं. नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट. आई विल टेक यू टू द थ्योरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. मैंने बहुत डीप में जाके अलग अलग ढंग से समझाने का ट्राई किया है. अच्छा, किसी का डाउट है? इफ एनीवन हैज डाउट आई विल टेक दोस डाउट्स. As stated above, long run is a period of time during which firm can vary all its inputs. इसलिए long run में एक ही कॉस्ट होती है जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट itself is total cost. शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट इज ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट. इसलिए हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते नहीं, हम डायरेक्टली टोटल कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, आगे. Unlike short run in which some inputs are fixed and others are variable. ठीक है. In other words, whereas in the short run the firm is tied to given plant. Short run में the firm is tied to a given plant. हम उसी प्लांट पे काम कर सकते हैं in the short run. हम उसको आगे पीछे करेंगे, उस प्लांट के आगे पीछे आ जाएंगे. मतलब we will try to move on the same plant. Underutilize उसको full utilize करना करेंगे, like that. आगे. However, in the long run, we can shift the plant. In the long run, right, firm can build any size or the scale of the plant and therefore can move from one plant to another, right? It can acquire a big plant. So we can move from one plant to another. It can acquire a big plant if it wants to increase its output. If you want to increase the output, long run में acquire a big plant, and a small plant if it wants to reduce the output. अगर आपको आउटपुट कम करना है तो एक्वायर लोअर, मतलब उल्टा मत करो. ज्यादा आउटपुट के लिए लोअर प्लांट एंड कम आउटपुट के लिए हायर कैपेसिटी प्लांट, उससे कॉस्ट ज्यादा रहेगी. सो लोअर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद अ लोअर कैपेसिटी प्लांट एट ए लीस्ट कॉस्ट. कम आउटपुट कम कैपेसिटी का प्लांट डाल के करो, कम कॉस्ट में हो जाएगा. हायर आउटपुट हायर कैपेसिटी का प्लांट डाल के करो, कम कॉस्ट पे हो जाएगा. द लॉन्ग रन बीइंग ए प्लानिंग हॉरिजॉन, the firm plans ahead to build the most appropriate scale of the plant to produce the future level of the output. Long run में हम plan करते हैं. It should be kept in the mind that once the firm has built a particular scale of the plant, its production takes place in the short run. एक बार आपने plan decide किया, then you have no other option but to use that plant for a given period of time. Briefly put, the firm actually operates in the short run and the plans for the long run. Long run cost of production. What is the long run cost of production? Long run cost of production is the least possible cost of producing any given level of output with all individual factors are variable. कोई भी output उठाओ, उसकी lowest cost, उस output produce करने की lowest cost, keeping all factors variable, is long run average cost. Then, a long run cost curve depicts the functional relation between the output and the long run cost of production. Short run average cost curve is functional relation between the output and the short run cost of production.
long run average cost is a functional relation between output and the long run cost of production. Again, in order to understand how the long run average cost curve is derived, we consider three short run average cost curves as shown in the figure 11. ये तीन, ये सब मैंने डिस्कस किया, so I won't go into detail. आगे यहां से it is to be noted that LSC curve is not tangent to minimum points of SSC curves. LSC curves is not tangent to the minimum point. When LSC is a downward sloping, it is tangent to downward sloping portion of the SSCs. When LSC curve is upward sloping, it is tangent to upward sloping portion of SSCs. But जब वो खुद lowest होती है, then only it is tangent to the lowest point of the SSCs. When LSC curve is declining, it is tangent to falling portion of the short run cost curves. मतलब वहां पे जो plant है वो underutilized है. And when LSC curve is rising, it is tangent to the rising portion of the short run cost curve. मतलब वहां के plants overutilized है. Thus, for producing output less than OQ at the lowest possible unit cost, the firm will construct the relevant plant and operate it at less than its full capacity. OQ output तक के जो plants है वो underutilized है, बराबर? That is at less than the minimum average cost of production. On the other hand, for the outputs larger than OQ, the firm will construct the relevant plant and operate it beyond the optimum capacity. इसके आगे वाले outputs में the plants are overutilized. OQ output is an optimum output. This is because OQ output being produced at a minimum point of LSC and corresponding SSC. जो minimum point of LSC और उसकी जो SSC है, दोनों के minimum point पे वो क्या हो रहा है? Produce हो रहा है OQ output. आगे लिखा है, that is SSC4 in this diagram. Other plants are either used less than their full capacity or more than their full capacity. Only SSC4 is being operated at a minimum point. ये वाला plant. Then the long run average cost. The long run average cost curve is often called as a planning curve because the firm plans to produce any given output in the long run by choosing a plant on the long run average cost curve corresponding to given output. Long run average cost curve is called as a planning curve. The long run average cost curve helps the firm to make choice of the plant, right, for producing a specific output at least possible cost. Explanation for the U-shaped. ये important है. As has been seen in the diagram, LSC curve is a U-shaped curve or boat-shaped curve or flattened U-shaped curve. अब अलग-अलग options हो सकते हैं, ठीक है? This shape of LSC has nothing to do with the U-shaped of SSC, which is due to variable factor ratio, because in the long run all factors are variable. SSC short run average cost U-shaped क्यों है? Because law of variable proportion. LSC क्यों U-shaped है? Because law of returns to scale. वही लिखा होगा. U-shaped LSC arises due to return to scale. Underline that. Returns to scale. As discussed earlier, when the firm expands, right? When the firm expands, returns to scale increases. After a range of constant returns to scale finally decrease like this. If you remember your diagram, returns to scale increases, returns to scale decreases, returns to scale increases. A plus B is greater than 1. A plus B is equal to 1. And A plus B is less than 1. If you remember, is less than 1. Okay? So, then, after range of constant return to scale, the returns to scale finally decreases. On the same line, देखो आउटपुट का अपोजिट कॉस्ट होता है, ये याद रखना, एवरेज कॉस्ट.
पहले रिटर्न्स ये इंक्रीज हुआ, इफिशिएंसी इंक्रीज हो गई इसलिए कॉस्ट डिक्रीज हो गई, फिर ये कांस्टेंट हो गया इसलिए कॉस्ट कांस्टेंट होगी, एंड ये डिक्रीज हुआ इसलिए कॉस्ट इंक्रीज होगी, इसलिए वो यू शेप्ड है। आगे देन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कॉज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ये वाला पोर्शन अपवर्ड स्लोपिंग ये वाला, राइट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कॉज fall in the long run average cost and decreasing returns to scale will result in rise in the long run average cost. ये decrease क्यों हो रही है? Increase in returns to scale. ये increase क्यों हो रही है cost? Because of decreasing returns to scale. Falling long run average cost and increasing economies of the scale. Long run cost curve decrease हो रही है and increasing returns to scales results from इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। अभी वो मुझे बोलना है, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल मैंने डीप में नहीं गया अभी तक। राइजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरनल, सिंपल वर्ड्स में इनिशियली इकोनॉमीज आर मोर, लेटर ऑन डिसइकोनॉमीज आर मोर, ठीक है। देन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इनिशियली फॉल्स, LAC initially falls with increase in the output and after a certain point it rises making a boat shape. Underline that word, it is a boat shape. The long run average cost curve is called as planning curve. Underline that, planning curve, as it helps in choosing a appropriate plant on a decided level of output. The long run average cost is also called as envelope curve because it envelops all short run cost curve. उनको वो envelope करती है, cover करती है, because it envelops or supports a family of short run average cost curves from the below. Then the above figure depicting, right, इसको VIMP करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा कि हमारी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है, बोट शेप्ड है, but in real life many firms face L-shaped. Many firms face L-shaped, yeah, like this. Because टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। मैंने बोला था एक सेक्युलर पीरियड होता है जिसमें टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। The above figure depicting long run cost curve is arrived at on the basis of traditional economic analysis. ये जो U shaped है, that is on the basis of traditional economic analysis. It is flattened U shape. देखो मैंने words use किए थे, underline flattened U shape, U shaped, boat shaped, flattened U shaped, ठीक है। This type of curve could exist only when state of technology remains constant. Underline U-shaped LAC is because technology remains constant, but in real life technology changes. Now you can see during the lockdown कितनी technology change हुई है, right? So but empirical evidence shows that modern firms face L-shaped, यहाँ पे डायग्राम निकाल के रखना, नीचे ऐसे होती है, this is traditional approach, but right, technology is a constant, is constant, ठीक है। यहां पे दिस इज मॉडर्न फर्म्स फेसेस, एक्चुअली से ट्रेडिशनल वगैरह कुछ नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, इट इज यू शेप्ड, ठीक है। दिस इज एल शेप्ड, जिसमें टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, चेंज होती है। बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज होगी ना तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और कांस्टेंट रहेगी। पहले टेक्नोलॉजी एडवांस की वजह से कॉस्ट कम होगी एंड देयर लेटर कॉस्ट विल रिमेन सेम बिकॉज टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होती रहेगी। एल शेप्ड एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। पढ़ो क्या लिखा है, बट इंपेरिकल एविडेंस शोज दैट मॉडर्न फर्म फेस एल शेप्ड कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एल शेप्ड ओवर ए कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट के लिए वो एल शेप्ड होती है। आगे the L-shaped long run cost curve implies that initially when output is increased due to increase in the size of the plant
and obviously variable factors will also change. Per unit cost falls rapidly due to economies of the scale. The long run average cost curve does not increase even after a sufficiently large scale of output, right, as it continues to enjoy economies of the scale. Try to understand, खाली इतना पता होना चाहिए, modern firm face which kind of LAC? They face L-shaped LAC. Reason, technology also changes. ठीक है? नॉर्मली हमारा आंसर रहेगा यू शेप्ड, बट जब क्वेश्चन में लिखा होगा मॉडर्न फर्म फेसेस डैश डैश टाइप ऑफ एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC, इट इज एल शेप्ड. रीजन इज टेक्नोलॉजी आल्सो चेंजेस. बस इतना. ठीक है? तो यहाँ पे मेरा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का डिस्कशन खत्म हो गया. तो व्हाट विल लर्न, देखो पहले हमने समझा द टाइप्स ऑफ द कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस इकोनॉमिक कॉस्ट, VIMP, बिकॉज इस पे न्यूमेरिकल्स भी है. न्यूमेरिकल्स भी है. आउटले कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें इंपॉर्टेंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट. डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर्सेस सunk कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट वर्सेस सोशल कॉस्ट. Social cost is private cost that is inside the firm plus external cost. ठीक है? Social cost is private plus external. Fixed versus variable है तो सबसे important है. Then we understood the cost function. Mathematical relationship, functional relationship between the output, right, and the cost, or the cost and the all those things which are bearing on the cost. Short run के types of the cost, total fixed cost, total variable cost, and total cost. This is completely fixed cost, completely variable cost. Zero से start होगी. This is semi variable cost. खाब से this portion will always remain fixed, and then as consumption increases, the cost increases. Example is electricity. Step ladder cost curve. For a given output, it remains constant. Later on, suddenly jump करेगी. For next level of output, it will remain constant. मैंने example दिया था इसमें, like supervisors का, clip का, bus का, right? Then ये total cost function है. Fixed cost starts from somewhere on y-axis. वहां से total cost start होती है. It means when output is zero, still there will be cost, that is fixed cost. Total variable cost will start from zero. It will increase initially at a decreasing rate. Later on, it will increase at a increasing rate. Similarly, total fixed cost will increase initially at a decreasing rate, and later on, it will increase at a diminishing rate. The distance between total cost and total variable cost is total fixed cost. Total का difference total ही रहेगा. Total fixed cost, and therefore this distance will remain always and always same. Distance between total cost and total fixed cost, ये वाला. Distance between total cost and total fixed cost, मतलब total cost minus total fixed cost is the total variable cost. Total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. Distance मतलब difference ढूंढना है. ठीक है? And that distance will keep on increasing because total variable cost will keep on increasing. अगर हम इसको क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, if I divide total fixed cost by quantity, I will get AFC. My AFC continues decreases. AFC continuously decreases. AFC continued हमेशा डिक्रीज होगी. एक ही कॉस्ट करे जो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, AFC. If I divide total variable cost by quantity, I will get average variable cost. Initially decreases, then increases. ठीक है? And if I divide total cost by quantity, I will get AC, average cost, U-shaped. The distance between average total cost and average variable cost decreases as output increases.
the distance decreases. Distance between ATC, average total cost, and average variable cost decreases because AFC decreases. And the distance between average total cost and average total cost and average fixed cost will increase because it is AVC which keeps on increasing. Okay? Then there is another cost curve which is called as marginal cost curve. It is marginal cost curve is a change in the total cost because of one additional unit, or one can also say total cost changes because of variable cost. Therefore we say marginal cost is change in the total variable cost because of additional one unit produced. एक यूनिट प्रोड्यूस करने की एडिशनल कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने की एडिशनल कॉस्ट कितनी है, that is my marginal cost. It is U shaped. It decreases initially, and later on it increases. It reaches its minimum, it passes through minimum of AVC and ATC. ठीक है? Then ये सब हमने समझा. We also understood the relation between marginal product and marginal cost. They are opposite. Initially, as labor increases, marginal product will increase, output will increase, marginal cost will decrease. Marginal product will become maximum, marginal cost will become minimum, and thereafter marginal product decreases, marginal cost increases. Opposite. Similarly, there is an inverse relation between average product and average variable cost. Exactly उल्टे. ठीक है? Then the rate जहां पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट लोएस्ट होती है, जब तक मेरी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव वे में डिक्रीज हो रही है, टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज या टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज. टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बोथ एट ए डिमिनिशिंग रेट, बट जब मार्जिनल कॉस्ट खुद इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, both will increase at a increasing rate, and this point is called as point of inflection. जैसे प्रोडक्शन फंक्शन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, वैसे कॉस्ट फंक्शन में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा. आगे, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर मी. ये मुझे हर चीज इसमें मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, वो समझ में आना चाहिए. एंड देन वी अंडरस्टूड द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ध्यान देना. This is average cost, this is marginal cost. When average cost is decreasing, marginal cost is below the average cost, is less than average cost. When average cost is a minimum, it is equal to marginal cost. Marginal cost cuts average cost from the below its minimum. When average cost is increasing, marginal cost is above the average cost, means marginal cost is more than average cost. And then we understood the long run average cost curve. खाली अब एक पॉइंट बाकी है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल. ये थ्योरी पार्ट है, वो मैं ले लूंगा ऑब्वियसली. ठीक है, आगे. ठीक है, ये सब था इस चैप्टर के रिलेटेड. If anyone has doubt, I will address those doubt. You have 2 minutes to ask the doubt before we start solving the questions. आगे. Yes, please. Anyone has doubt? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप जो सैक्रिफाइस करते हो ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. लाइक एग्जांपल, यू आर अटेंडिंग द क्लासेस,
योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फन दैट यू हैव मिस्ड. और राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप कुछ दूसरी जगह पे जाके काम कर सकते थे और आपको सपोज 1,000 रुपीज डेली मिलते हैं, सो दैट कैन बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझ में आ रहा है? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस. एक देखो, बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, सो एक रिसोर्स अलग अलग वॉन्ट्स के लिए रख सकते हो. तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट पुट इट फॉर द मल्टीपल, मुझे एक तो कुछ चूज करना होगा, राइट? सो व्हेन देयर इज अल्टरनेटिव्स एंड आई हैव टू चूज समथिंग, इट मींस आई हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग. आई हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, एंड वो सैक्रिफाइस की कॉस्ट, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं सैलरी सैक्रिफाइस कर रहा हूं. मैं कहां पे काम कर सकता हूं, मैंने कैपिटल बिजनेस में लगा है, वही मैं कहां पे इन्वेस्ट कर सकता था, उसमें मुझे इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता. सो दैट बिकम माय cost of sacrifice, opportunity cost. Efficiency and average cost are inversely related, yes, obviously. If efficiency is increasing, means production is increasing, MP is increasing, costs will be decreasing, average cost will be decreasing. Obviously, जब efficiency increase होगी तो cost कम होनी चाहिए ना. Are you getting my point or no? Average cost, मैं total की बात नहीं करूं, मैं average. जब efficiency increase होती है तो average cost should decrease. क्लियर है? देन ठीक है, एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, जिसको हम प्लांट कर्व बोलते हैं, प्लांट कर्व. एसएससी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज जस्ट एंड जस्ट एवीसी, बिकॉज लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट होती नहीं, इसलिए हम वहां पे लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट के बारे में बात नहीं की, वेरिएबल के बारे में बात नहीं की, बिकॉज जो भी है वो वेरिएबल ही है, इसलिए हम डायरेक्टली हम उसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है? अच्छा, इसके सिवा किसी के क्वेश्चन? I will go through these points. This is a theory. ध्यान देना. What is economies and diseconomies of the scale? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझाता हूं. In India, cricket is developing. Everyone will agree with me. In India, cricket is developing and it helps each and every player. Cricket is easily available, grounds available है, equipments available है, कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है, राइट? आप कोई भी स्पोर्ट्स चैनल देखो, आप वहां पे आप क्रिकेट के मैच देख सकते हो, एनालिसिस अवेलेबल है. ओवरऑल क्रिकेट इज डेवलपिंग इन इंडिया. क्रिकेट एज ए इंडस्ट्री इज डेवलपिंग इन इंडिया, एंड दैट हेल्प्स विराट कोहली, दैट हेल्प्स पांड्या, दैट हेल्प्स बुमराह, एंड एवरी प्लेयर, रोहित शर्मा, सबको बेनिफिट दे रहा है. ये जो बेनिफिट मिल रहा है एक्सटर्नल की वजह से मिल रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज बेनिफिट्स आर एक्सटर्नल. सो ये जो ओवरऑल क्रिकेट डेवलप हो रहा है वो सबको बेनिफिट दे रहा है, सब प्लेयर्स को बेनिफिट दे रहा है, जो प्लेयर्स नहीं है उनको भी बेनिफिट दे रहा है. जब इंडस्ट्री एक्सपांड होती है, इंडस्ट्री एक्सपांड होगी, उसका बेनिफिट सब फर्म्स को मिलेगा. एग्जांपल, पुणे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर इजीली अवेलेबल बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री इंक्रीज हुई. यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ कॉलेज यू विल फाइंड इन पुणे. आप टॉप का मेडिकल कॉलेज ले लो, इट वन ऑफ द बीजे मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल कॉलेज इज अवेलेबल इन पुणे. एग्रीकल्चर कॉलेज, महाराष्ट्र का सेकंड नंबर का एग्रीकल्चर कॉलेज, एक नंबर हाउरी में अहमदनगर में, 2 नंबर का पुणे में एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, 3 नंबर का परभनी में, इफ यू एक्चुअली चेक, और एक 4 4 है महाराष्ट्र में, 3 मुझे पता है बिकॉज आई हैव विजिटेड द 3 प्लेसेस.
सो वो मिलेगा आपको. वन ऑफ द लीडिंग साइंस कॉलेजेस लाइक फर्ग्यूसन, राइट, वन ऑफ द लीडिंग कॉमर्स कॉलेजेस, आर्ट कॉलेजेस, लॉ कॉलेज, राइट, आईलेस. हाँ, आईआईटी आईएम नहीं है ये मैं मानता हूं, बट सिम्बायोसिस इज वन ऑफ द फेमस मैनेजमेंट कॉलेज. पुम्बा है, पुणे यूनिवर्सिटी का पुम्बा है मैनेजमेंट के लिए. यहाँ पे ओवरऑल एजुकेशन कॉलेजेस इतने सारे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे कॉलेज गोइंग क्राउड पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से आते हैं. एंड देयरफॉर इट हेल्प्स इवन एकत्व. बच्चे बाहर बाहर से यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं एंड दैट हेल्प्स एकत्व. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये. तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर इंक्रीज हो रहा है एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन सेक्टर. वी आर ए फर्म एंड देयर इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है इसलिए हमें फायदा हो रहा है. इट इज एक्सटर्नल टू अस. इट इज एक्सटर्नल टू अस. उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज. जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसके आपको जो फायदे मिल रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एंड अगर उसके कोई डिसएडवांटेजेस है उसको एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज बोला जाता है. समझ में आ रहा है? इसका फायदा हमें भी हो रहा है और जो दूसरे क्लासेस है उनको भी हो रहा है. कोई छोटा मोटा क्लास है उनको भी हो रहा है. सबको बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि पुणे में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. एग्जाम्पल, नाउ we as a Ekatva go to various colleges in Maharashtra. We advertise there, we take seminars over there. हमारे फैकल्टीज अलग अलग जगह पे जाते हैं. कॉलेज, सीनियर कॉलेज में जाके, जूनियर कॉलेज में जाके we make students aware about the CA course. We make them aware about the Ekatvam Academy. We are putting the efforts and उसकी वजह से बच्चे पुणे में आके हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं. It is because of our efforts. It is internal. Are you getting my point? They are called as internal economies and diseconomies. Internal economies is because of your own efforts. आपको efforts लेने पड़ेंगे, उसके कुछ फायदे होंगे, उसके कुछ नुकसान होंगे. External means आप पुणे में क्लास डाल दो फिर भी 10-15 एडमिशन हो ही जाएंगे ऐसे. Are you getting my point? बट आपको उसको 80 एडमिशन करने, उसको 100 एडमिशन करने, 200 करने, यू हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम. 30-40 इयर्स करोगे तो अपने आप एडमिशन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको. बिकॉज उतने बच्चों को आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिखाया होगा. माउथ पब्लिसिटी अपने आप होती है. एज द टाइम विल स्पेंड, एक्सपीरियंस वो एक्चुअली लोगों में पता हो जाता है कि इतने सालों से. ठीक है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, when we started Ekatvam in camp, right, it was already known to the public. So उसका जो बेनिफिट हमें मिला वो हमारे लिए एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज में आएगा. एंड जब हमने हमारे एकत्वम कैंप के फैकल्टीज ने जो एफर्ट डाला, ऑल द फैकल्टीज, राइट, वी रीच टू द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट हमारे पास आए उनको हमने ठीक से हैंडल किया, उनको अच्छी सर्विसेज दी, इसलिए उनके रेफरेंस के थ्रू बच्चे आ रहे हैं. वो है इंटरनल इकोनॉमिक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वी नो द ब्रांड विल हेल्प. द ब्रांड की वजह से 10-20% एडमिशंस होते हैं, 30-25%. बट जो फैकल्टीज अगर अच्छे से नहीं सिखाएंगे तो वो एडमिशन रिटेन नहीं होंगे. लाइक जो स्टूडेंट 11th में आता है कैंप में, वो 12th में रहता है, वो फाउंडेशन. वी स्कैटर टू 3 लेवल्स. तीनों लेवल तक हमारे पास बच्चे रहते हैं. अगर हम 11th में उनको अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो 12th में हमारे पास नहीं रहेंगे. सो जो हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको रिटेन कर रहे हैं, वी आर पुटिंग द एफर्ट, दे आर इंटरनल टू अस. दैट डज नॉट बिकम राइट सम ब्रांड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला ओवरऑल एजुकेशन पुणे में ग्रो हो रहा है, पुणे का नाम हो रहा है, उसका फायदा एकत्वम कैंप को हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल. बट जब हम एफर्ट डाल रहे हैं, राइट, हम अलग अलग जगह पे जाके बच्चों से मिल रहे हैं, वी आर एडवर्टाइजिंग, हम सेमिनार्स रख रहे हैं, एंड वी आर राइट इंक्रीजिंग द नंबर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल. सो इंटरनल इकोनॉमिक्स is because of the internal like
activities of the firm. It is internal to the firm. Economies or diseconomies, and external is because of the industry to which you belongs. तो मैं एग्जांपल दे रहा था क्रिकेट इंडस्ट्री का. क्रिकेट इंडस्ट्री में ओवरऑल क्रिकेट इंडिया में बहुत डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ आईपीएल एंड एवरीथिंग. इट इज वेरी कॉमन. ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिसको क्रिकेट के बारे में पता नहीं होगा. मैं नहीं बोलता कि आपको हर चीज पता होगी, बट एटलीस्ट वो साक्षी को ही पता नहीं थी, बाकी सबको पता है. साक्षी को एमएस धोनी वाली, ठीक है, सो बाकी सबको पता है. तो आपको मैं बोल रहा हूं कि उसका फायदा सबको होता है. कोहली को भी होता है, बाकी टीम प्लेयर्स को भी होता है, सबको होता है. बट एवरीवन इज नॉट लाइक कोहली और रोहित. रीजन, they also put their own efforts. Try to understand. वो खुद के डेवलपमेंट पे एफर्ट डालते हैं एंड उसका फायदा उनको होता है एंड वो अलग लेवल पे जाके खेलते हैं. सो एक एक क्रिकेट डेवलप होने का फायदा टू रोहित एंड कोहली एंड बुमराह, एंड वो उनके खुद के एफर्ट का भी उनको फायदा मिलता है. सो जो क्रिकेट डेवलप हुआ है उसका फायदा एक्सटर्नल टू देम, एंड जो खुद डेवलप कर रहे हैं खुद को वो इंटरनल है. So internal economies and diseconomies accrues because of their own efforts. When organization खुद increase होती है, organization खुद efforts लेती है, advertise करती है, managerial changes करती है, economical, technical changes करती है, उसके जो उनको advantages होंगे उसको बोला जाता है internal economies. and अगर उसके disadvantages भी होते हैं, अगर firm बहुत बड़ी हो गई, it becomes very difficult to manage. That is a reality. अगर बहुत बड़ी हो गई तो लाइक जैसे कांग्रेस इतनी बड़ी हो गई कि मैनेज करना मुश्किल हो गया. बीजेपी इज इंक्रीजिंग, दे आर फाइंडिंग इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, बट कभी ना कभी वो डिस इकोनॉमीज में डेफिनेटली आ जाएंगे. एंड दैट इज अ लाइफ साइकिल यार, कोई भी हो. ऐसा नहीं कि एवर ग्रोइंग रहेगा, नॉट एट ऑल. कभी ना कभी उसमें भी एक स्टैग्नेशन आ जाएगा, एंड दैट इज अ प्रोसेस यार. एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट दैट लाइफ गोस. अब बर्थ लिया तो डेथ होगी कभी ना कभी, ये सर्टेन है. सिमिलरली आज वो ग्रो हो रहा है, कभी ना कभी वो स्टैग्नेशन होके आ जाएगा. इसलिए ऑपोजिशन में शांत बैठना ऐसे भी नहीं होता, ठीक है. दे शुड बी एक्टिव एज वेल. सो अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनका लाइफ स्पैन और इंक्रीज होगा ऐसे. नेक्स्ट, सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. लाइक एग्जांपल, आपकी अननेसेसरी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, right? Because there may be some resources which are not actually working, right? Their efficiency is less, फिर भी हम उनको पेड कर रहे हैं, right? आपके फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी है. उसको बोला जाता है इंटरनल डिस इकोनॉमीज. इकोनॉमीज मतलब एज बिजनेस खुद ग्रो करेगा, राइट, उसके उनको जो एडवांटेजेस है, लाइक यू कैन, आप एडवर्टाइज, आप बड़े बिजनेस के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपके लिए वही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, राइट, कम हो जाएगी. लाइक वी हैव 3-4 ब्रांचेस सपोज, तो एडवर्टाइज एक ही होगी, तो दैट कॉस्ट गेट्स अलोकेटेड टू ऑल द ब्रांचेस. तो इन दैट केस पर यूनिट कॉस्ट विल डिक्रीज. समझ में आ रहा है? देयर इज अ पॉइंट इन गोइंग फॉर मोर एडवर्टाइजिंग. देन एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. मतलब उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. जैसे हम फर्म एक्सपेंड करेंगे, वी कैन बाय मोर रॉ मटेरियल एंड देयरफॉर पर यूनिट कॉस्ट विल डिक्रीज. Internal economies. But at the same time, right, maybe suppliers will put the pressure and they may not give you discount. That can be internal diseconomies. समझ में आ रहा है? ओवरऑल पुणे में ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो. पुणे इज नोन फॉर द ऑटोमोबाइल, आईटी एंड एजुकेशन. इन 3 चीजों के लिए पुणे फेमस है. ऑटोमोबाइल, आईटी एंड एजुकेशन. ऑटोमोबाइल सेक्टर जो पुणे में डेवलप हुआ है, उसके आजू बाजू के जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है उनको फायदा हो रहा है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है, उसका फायदा इन्फोसिस को हो रहा है, आईबीएम को हो रहा है, एक्सेंचर को हो रहा है, सबको फायदा. बिकॉज यहाँ पे फिर लोग आते हैं काम करने के लिए पुणे में, इन सर्च ऑफ जॉब. उनको स्किल्ड लेबर मिलता है. वही अगर मैं नगर में लेता हूँ कोई आईटी फॉर्म एंड पुणे में लेता हूँ, पुणे में इजिली लोग अवेलेबल रहेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इसलिए उनको फायदा है. मे बी वो एफर्ट नहीं डाल रहे होंगे, फिर भी फायदा मिलता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. लाइक
जब इंडस्ट्री जितनी बड़ी होगी उतनी कंपटीशन इंक्रीज होती है एंड इट ऑल्सो पुट्स प्रेशर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक सप्लायर्स बोलेंगे आपको परचेस करना है तो करो, नहीं तो मत करो, हमारे पास बहुत सारे बायर्स है, आप अकेले नहीं. दे विल इंक्रीज द कॉस्ट, लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल इंक्रीज, रेंट विल इंक्रीज. वो कहे जाएंगे एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. लाइक जब क्रिकेट डेवलप हो रहा है, फायदा कोहली को हो रहा है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. एंड इवन एट द सेम टाइम देयर आर सम प्लेयर्स हु आर really performing very good in the domestic cricket. They also poses threat to the कोहली कि कल जाके कुछ ऐसे प्लेयर्स बनेंगे जो कोहली को भी रिप्लेस करेंगे. जैसे तेंदुलकर को रिप्लेस किया गया, गावस्कर को तेंदुलकर ने, तेंदुलकर को सपोज कोहली ने, तो कोहली को भी कोई तो रिप्लेसमेंट आएगी. बिकॉज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये ग्रो हो रहा है, तो उसके फायदे कोहली को है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो पोजेसेस राइट some threats, they are called as external diseconomies. and कोहली खुद जो एफर्ट्स ले रहा है वो इंटरनल इकोनॉमीज, एंड मे बी उसकी वजह से कुछ उसको डिसएडवांटेजेस भी होते होंगे. दे मे बी कॉल्ड एज इंटरनल डिसइकोनॉमीज. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ध्यान देना. आई विल मैं क्या ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला, बिकॉज ये खाली पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए. टेक्निकल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. इन you go for an advanced technology, your output will increase in everything, you are putting efforts, it is internal. But at the same time like उसके disadvantages भी हो सकते हैं, like cost will increase, टेक्नोलॉजी रिप्लेस करने की है, अगर आप उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करोगे तो योर पर यूनिट कॉस्ट अगर अंडर यूटिलाइज है, योर एवरेज कॉस्ट विल बी मोर. So technical economies versus technical diseconomies. Then managerial economies and diseconomies. If you appoint a really good team, MBS को आपने अपॉइंट किया आपके मैनेजमेंट पे, like कोटक महिंद्रा बैंक, right? All MBS manage the bank. टॉप मैनेजमेंट में सब MBS IIM पास आउट से. Now obviously that will give them best managerial services, right? आपने अच्छे मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट पे काम पे लगाए लोगों को, इंटरनल इकोनॉमीज, मैनेजर इकोनॉमीज. बट एट द सेम टाइम देयर कॉस्ट इज वेरी हाई, देयर कॉस्ट इज आल्सो वेरी हाई. सो दैट मे पोज यू मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज. देन commercial economies and diseconomies. Commercial economies and diseconomies, like if organization increases, it can borrow more funds, more loans, it can go for more trade discount, it can ask its suppliers to give more discounts, more rebates. समझ में आ रहा है? So that gives commercial economies, but at the same time it also creates some diseconomies, like suppliers may right refuse to give the discount because you are growing and they think कि you can pay them. Yeah, sometimes cost increases. As you increase, your rent and your fixed cost will increase. ठीक है? So हम उसको बोलते हैं कि commercial diseconomies, financial economies and diseconomies. वही commercial financial आप एक ही point of से देख सकते हो. Then risk bearing economies and diseconomies. As organization grows, खुद ग्रो हो रहे हो in internal, that helps you to bear the risk very easily. Small organization like example Reliance जैसे प्लेयर जब ब्रॉडबैंड में आ गए, ऑप्टिक फाइबर में आ गए, ये छोटे मोटे तिकोना वगैरह ये प्लेयर्स वाइप आउट हो जाएंगे बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड टू दैट कॉम्पिटिशन. बट जैसे से ये प्लेयर्स भी बड़े होते जाएंगे, दे कैन स्टैंड अगेंस्ट देम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो जब आप ग्रो करोगे तो जो रिस्क रहेगी उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो. एट द सेम टाइम देयर आल्सो लाइज द रिस्क ऑफ द फेलियर. अगर आप फेल हो गए तो आपके लॉसेस बहुत हेवी रहेंगे. ठीक है? सो रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, यू जस्ट आपको हेडिंग पता होनी चाहिए. यू गो थ्रू वंस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है? एक्सटर्नल इतना पता होना चाहिए, व्हाट इज इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, व्हाट इज एक्सटर्नल. इंटरनल मींस बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट. जब फर्म खुद एफर्ट डालेगी उसके जो उनको बेनिफिट्स या डिसएडवांटेज मिलेंगे उसको इंटरनल इकोनॉमी या डिसइकोनॉमी बोला जाएगा. एंड इंडस्ट्री एक्सपांड या कुछ ग्रो होती है, उसके जो बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस रहेंगे उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल.
एक्सटर्नल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमीज, ठीक है। देन चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट, जब इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी तो रॉ मटेरियल सप्लायर्स वहां पे आएंगे, जो हम वहां पे जाके उनके पास जाके परचेस करते हैं आउट स्टेशन पे, नाउ दे विल स्टार्ट कमिंग इन योर प्लेस एंड दे विल स्टार्ट सप्लाइंग बिकॉज यू आर नॉट द वन, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। लाइक एग्जांपल, पुणे में आईटी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो जो सब लेबर्स है वो पुणे में आ रहे हैं, यहाँ पे आके जॉब देख रहे हैं, तो लेबर इजीली अवेलेबल हो रहा है। देन टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ओवरऑल टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, तो टेक्नोलॉजी ओवरऑल नई आ जाएगी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहेगा एंड दैट टेक्नोलॉजी विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। मतलब आपने रिसर्च नहीं किया तो चलेगा, जो इंडस्ट्री में रिसर्च हो रहा है वो यूज करके आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्ड लेबर, उस एरिया में बहुत सारे स्किल्ड लेबर आएंगे, अनस्किल्ड है, दे विल स्टार्ट वर्किंग विद समवन, दे विल गेट स्किल्ड एंड धीरे धीरे आपको स्किल लेबर्स का नंबर इंक्रीज होगा बिकॉज इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, all those industries which are like subsidiaries or ancillary related industries will grow. Like पुणे में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ऑटोमोबाइल रिलेटेड बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, आईटी रिलेटेड बहुत सारे, राइट, आपको एंसिलरी इंडस्ट्रीज दिखेगी। एजुकेशन रिलेटेड लाइक आप मेस देख सकते हो, आप पीजीज देख सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, दे ऑल आर एंसिलरी टू द एजुकेशन, मेन कॉलेजेस वगैरह उनका भी ग्रोथ होगा। बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, राइट, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बिकॉज इंडस्ट्री इटसेल्फ ग्रो हो रही है, ठीक है। एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, इजीली मार्केटिंग कर सकते हो आप बिकॉज आपको पता है आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन है, आपके टारगेटेड एम्प्लॉयज कौन है, आपके टारगेटेड, राइट, सप्लायर्स कौन है। एंड इकोनॉमीज ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी, डोमेन में इंफॉर्मेशन इजीली मिलेगी। जस्ट यू मस्ट नो द हेडिंग, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा याद रखना है, जस्ट इतना समझ लेना, इंटरनल क्रिकेट ग्रो हो रहा है इसलिए कोहली को जो बेनिफिट है वो एक्सटर्नल है, उसके कोई फायदे इकोनॉमीज, उसके कोई तोटे वो डिस इकोनॉमीज। बट कोहली खुद एफर्ट्स ले रहा है, उसके फायदे खाली उसको होंगे, सबको नहीं होंगे। एक इंडस्ट्री ग्रो होने के इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज सबके लिए इक्वल रहेंगे, सबके लिए इक्वल रहेंगे, बट खुद कोहली जो एफर्ट्स ले रहा है that efforts will pay to him only, not others. Try to understand. So internal economies and diseconomies accrue because of firm's own efforts. As firm grows, it gives some economies, creates some diseconomies, and that are only available to the firm and not everyone. External मतलब सबके लिए benefit रहेगा, ठीक है। आगे, so एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री मैच्योर हो जाती है, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है, सो एक आपके ग्रोथ पे भी क्या आ जाता है, लिमिट आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर, जस्ट एक बार पढ़ लेना, नॉट टू रिमेम्बर एनीथिंग, जो अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको अंडरलाइन करके रखना, राइट। इसमें क्वेश्चंस व्हाट इज इंटरनल व्हाट इज एक्सटर्नल उस पे रहेगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन इधर किधर तो लिखा होगा उन्होंने, एक सेकंड, इधर देखो, internal economies are those economies of the production which accrue to the firm when it expands its output, so that cost of production will come down considerably and place them in a better position to compete in the market effectively. Internal economy is when firm expands its output, खुद expand होगी। Internal economies arise purely due to endogenous factors, internal factors, right, relating to the efficiency of entrepreneur or his managerial talent or the type of machinery used or the marketing strategy adopted, वो उनके खुद की वजह से internal economies और diseconomies आएंगे। These economies arise within the firm. These internal economies and diseconomies arise within the firm, internal होते हैं, right, and available exclusively for that firm only. खाली कोहली जो एफर्ट्स डाल रहा है उसके बेनिफिट कोहली को होंगे, बाकी लोगों को नहीं। ऑन द अदर हैंड
external economies, right, are the benefits accruing to each member firm of the industry as a result of expansion of the industry. क्या बोला मैंने क्या बोला आपको? External economies are the benefits accruing to each firm. सबके लिए benefit रहेगा, right? Because industry expand होती है, firm expand होगी, internal economies, diseconomies. Industry expand होगी, external economies and diseconomies, and then the inter. ये important है, बाकी चीजें इतना कोई नहीं पूछता, ठीक है? बट एक बार खाली पढ़ के लेना, बिकॉज इट इज थ्योरी कंटेंट. जितना मुझे इसमें से इंपॉर्टेंट था वो मैंने डिस्कस किया, बिकॉज ये थ्योरी है, यू हैव टू रीड इट आउट वंस, ठीक है? सो जो भी टेक्निकल चीजें थे सब मैंने कवर किए हैं. यहाँ पे मेरा कॉस्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है? लेट मी चेक. ओके, ध्यान देना. दिस डायग्राम, ठीक है? एवरीवन ध्यान देना. ठीक है? कंसिडर द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस. A, B, C, D, E. LAC, long run average cost. This is cost and this is output. Which region represents economics? Economics कहाँ पे होंगे? Which region represents economics? Region C to D, region A to B, region D to E, और B to D. Actually, ये पूरा रीजन है ना, इकोनॉमीज. ये मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, ठीक है? ऑप्शंस ध्यान मत देना. दिस ऑल इज इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. दिस ऑल रीजन इज डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल. एंड ये जो डी वाला पॉइंट है ना, दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. सो एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी गफलत है, मैं खुद मानता हूँ. ये मैंने ड्राफ्ट किया है क्वेश्चन. दिस इज इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. डाउनवर्ड स्लोपिंग LAC इकोनॉमीज, अपवर्ड स्लोपिंग LAC डिसइकोनॉमीज. यहाँ पे represent diseconomies which neutralizes the impact of economies. D portion represents diseconomies neutralizing the impact of economies. Economies is equal to diseconomies. Answer is D. Actually यहाँ पे डायग्राम में कुछ आगे पीछे हुआ होगा, ठीक है? ये शायद से यहाँ पे मिल जाएगा मुझे किंडल में. लेट मी चेक. वहां से एक क्वेश्चन है शायद से ये. लेट मी शो यू. मे बी वो डायग्राम निकालते आगे पीछे कुछ हुआ होगा. अरे 80 ना, तो आगे रहेगा शायद से. हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला. The question was, which region represent diseconomics? Which region represent diseconomics? खाली यही क्वेश्चन था. DE region represent diseconomics. फिर मैंने उसी को अलग अलग कर दिया, तो ठीक है. सो अगर बोलते हैं which region represents diseconomics, तो ये D वाला रीजन है ना, वो इकोनॉमीज इज इक्वल टू डिसइकोनॉमीज. इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है? डिसइकोनॉमीज का है, रिप्रेजेंट डिसइकोनॉमीज, DE. ये क्वेश्चन था, मैंने 2 क्वेश्चंस और डाल दिए उसमें. अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 to 96.
आपके पास नोट्स हैं, ओपन देम, राइट, टेक 2 minutes टू सॉल्व इट, और फिर मैं आंसर बोलूंगा. क्वेश्चन नंबर 89 to 96. सॉल्व करो. ओपन यूर नोट्स. एवरीवन हैज गॉट नोट्स ऑलमोस्ट. एक आधा तो बच्चा रहेगा जिसको अभी भी नोट्स नहीं, मे बी उनके ट्रांजिट में, हम डिलीवर नहीं कर पाए, दोनों में से एक रहेगा. लिखो. राइट, और फिर मैं आंसर दूंगा. दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ओके, अब ध्यान देना एक एक. कॉस्ट पर यूनिट एंड SSC1, SSC2, SSC3. Which plant of the should firm install to produce OA output among the 3 feasible plants? टाइप में आंसर ABCD. कौन सा प्लांट आपको लगता है OA आउटपुट के लिए सुटेबल है? जल्दी करो टाइप. रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं. रॉन्ग तो रॉन्ग. OB आउटपुट, लेट इट बी रॉन्ग, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. OB आउटपुट के लिए, सॉरी OA आउटपुट के लिए, I can produce it on SSC1 or SSC2 and my cost is the same. But at the intersection, we should go for the higher plant, SSC2. Which plant the firm should install to produce OB output? OB के लिए बोलो कौन सा ABC? I can use both SSC2 and SSC3. मैंने दोनों यूज करने चाहिए. उसमें से दोनों यूज कर सकता हूं because cost is same. I will go for the SSC3. ठीक है, I will go for SSC3. आगे, if OA, if output OA is 10,000, this is 10,000. If output OA is 10,000
and length of a perpendicular from plant 1 to point A is 5. This is 5. This is 5. So what is the question? And from plant SSA 2 to point A is 7. अच्छा, उन्होंने थोड़ा सपोज ऐसे माना है उन्होंने, ठीक है, ऐसे SSA 1, SSC 2, this is the output, OA output, this is 10, this is 5, this is how much? 7, and this is 10. ये ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा है. If output OA is 10,000 units and length of a perpendicular from plant 1 to point A is 5 and from plant 2 to point A is 7. So plant 2 की cost ज़्यादा है than the plant 1 की cost. Obviously, I will go for the plant 1. What is the cost of production in this case? Right? What is the cost of production in case producer is overutilizing SSC2? अगर आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हो SSC2, क्या बोला उन्होंने? ओवर यूटिलाइजिंग द SSC1. देखो, इफ यू सी SSC2 के केस में वी आर अंडर यूटिलाइजिंग द SSC2. हम SSC2 अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं एंड मैं SSC1 ओवर यूटिलाइज कर रहा हूं. सो इट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5. 10,000. 10,000 multiplied by 50,000. Answer is 50,000. वही क्वेश्चन है, what is the cost of production in case producer is underutilizing SSC2? ये वाला प्लांट underutilized है, so 10,000 multiplied by 7, ये वाला एरिया 70,000. Answer is 70,000. ठीक है. If producer is producing the OD output, producer is producing the OD output, ठीक है, यूजिंग SSC3, वो SSC3 पे OD आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है. SSC3 का मिनिमम पॉइंट ये है, सो इट इज राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट और ऑन अ राइजिंग पोर्शन ऑफ प्लांट 3. क्वेश्चन इज he will be dash dash plant SSC3. He will be over utilizing the plant 3. If the producer is producing OB on SSC3, OB on SSC3, यहां पे देखो ये वाला OB on SSC3, OB on SSC3, you are producing OB on SSC3 means you are downward sloping portion of SSC3. डाउनवर्ड पे हो मतलब SSC3 आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो और SSC2 के अपवर्ड पे हो. SSC2 ओवर यूटिलाइज हो रही है, SSC3 अंडर यूटिलाइज्ड है. सो आंसर इज अंडर यूटिलाइजिंग. If the producer is producing OB output using SSC2, SSC2 के अपवर्ड पोर्शन पे, so it is over utilizing. If the producer is producing OA output using SSC2, OA output using SSC2, SSC2 पे OA output, so on downward sloping portion of SSC2, SSC2 is underutilized. Then let me check अगर ऐसे कोई और डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो. ठीक है, I will be sharing the answers of these questions. लेट मी चेक अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है जो मुझे खुद होके कवर करने होंगे.
I will take these questions, no doubt. हाँ ये वाला देखो, again diagram question. ध्यान देना. In the above diagram, the curve numbers 1, 2 and 3 are ABCD. टाइप करो. फुल यूटिलाइजेशन लोएस्ट पॉइंट पे होता है. लोएस्ट पॉइंट पे फुल यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है. Answer is B. So 1 is AFC, continuously decreasing. 2 is AVC, and third is average cost. So what is the answer? AFC, AVC, AC. In the above diagram, at OK level of output, the average cost is equal to OK का average cost बोलो. ABCD करो टाइप. ABCD जल्दी. ये डायग्राम करेंगे, then we will take the break. आज के लिए बहुत हो गया. ओए आउटपुट की आपको क्या ढूंढने को बोला है? एवरेज कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट के नीचे देखो, एनके. एनके ना, एवरेज कॉस्ट इज एनके. KN. Okay. A. Then in the above diagram at OQ level, KL denotes. KL denotes. KL. ये वाला. It denotes what? किसके नीचे है वो? KL is AVC, average variable cost. In the above diagram at OK, KM denotes. KM denotes बोलो. KM denotes किसके नीचे? AFC. AFC. Then in the above diagram at OK level of output, the vertical distance shaded between LN denotes. LN. Distance between LN. Let me check. LN. ये वाला. ये distance क्या है? बोलो answer. LN is what? LN is what? This is average cost minus average variable cost. It is average fixed cost. Average fixed cost. ठीक है. In the above diagram, on the right side, curve 3 becomes closer to curve 2. Curve 3 becomes closer to curve 2. It means component of AFC shrinks. I do agree. AFC कम होती है इसलिए वो distance कम होता है. Component of AFC increases. No. Component of AVC increases. Yes. Obviously वो रहेगा shrinks. ये दोनों correct है. दोनों correct है ना. As output increase, AFC will decrease, AVC will increase. अगर इसके रीजन, एक्चुअली मेन रीजन AFC डिक्रीज होती है, पर ऑब्वियसली उसके बाजू में एक भी है कि AVC खुद भी इंक्रीज हो रही है ना, इसलिए वो डिस्टेंस कम हो रहा है. सो आंसर इज 1 and 3. 1 and 3. Then in the above diagram, on the right side, curve 1 gets away from curve 3. Curve 1 gets from curve 3. Curve 1 gets away from curve 3. AFC decreases and उसका रीजन है AFC decreases
एंड एबीसी, वही रीजन रहेगा। कंपोनेंट ऑफ एएफसी कभी भी इंक्रीज नहीं होता, एएफसी विल नेवर इंक्रीज। कंपोनेंट ऑफ बोथ एएफसी एंड एबीसी डिक्रीजेस, एबीसी एक्चुअली इंक्रीज होती होगी। कंपोनेंट ऑफ एएफसी श्रिंक्स बट कंपोनेंट ऑफ एबीसी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, नो इश्यूज। आज अपना ये चैप्टर खत्म हुआ है। आई विल टेक दिस क्वेश्चंस एट अप्रोप्रिएट टाइम। संडे को योर टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑन प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 48 रिपीट करना है। अरे इन दोनों का डिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है? रीजन वही है, एएफसी डिक्रीज होगी एंड एबीसी इंक्रीज होगी। रीजन दोनों का वही है। एक्चुअली मेन रीजन कि एबीसी इंक्रीज होती है, बट उसके साथ दूसरा रीजन आता है एएफसी डिक्रीज होती है। इनका डिस्टेंस कम होने के लिए भी वही रीजन है, इनका डिस्टेंस इंक्रीज होने के लिए भी वही रीजन है। वी नो द नेचर ना कि एएफसी हमेशा डिक्रीज होगी और बाद में एबीसी इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड इन दोनों से मिलती है मुझे क्या? एवरेज कॉस्ट। ऐसे चलो रुकते हैं आज। थैंक यू।